Hello everyone, welcome back to the IS Network mains lecture series for internal security. So till now, through our previous lectures, we have covered multiple topics including money laundering, issues related to organized crime, their relationship with various other activities like terrorism, communalism, etc. Today, we'll be covering the topic of left-wing extremism. So we'll have a thorough understanding of what this term means, how it is being playing out on the ground, what are the various examples where we can see left-wing extremism in action, followed with few issues and causes which are leading to this phenomena, and we'll see that holistically what can be done in order to resolve this internal security issue. So let's begin with the lecture. So सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है. So इस टर्म में बेसिकली तीन वर्ड्स हैं, लेफ्ट, विंग एंड एक्सट्रीमिज्म. So left wing in itself is a phrase which means that left of the center. So basically ये एक आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है, वो आइडियोलॉजी जो बेसिकली कम्युनिज्म से रिलेट करती है, सोशलिज्म से रिलेट करती है. So it's basically saying that it tries to challenge the status quo and basically establish the rule of the proletariat. Whereas जो दूसरी टर्म है इसके अंदर एक्सट्रीमिज्म, उसका मतलब है बेसिकली यूजिंग ऑफ extra constitutional means, going outside the permitted domains of the constitution in order to fulfill one's demand. So basically अगर हम इन दोनों टर्म को कंबाइन करें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब बनेगा बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेंट प्रोटेस्ट विच इज टारगेटेड एट बेसिकली फर्दरिंग द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. ओके, सो बेसिकली ये मूवमेंट इंडिया में 1967 में नक्सलबारी विलेज से स्टार्ट हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजुमदार एंड कानू सान्याल. सो बेसिकली इनके माओइस्ट डॉक्ट्रिन प्रोफेस करती है ये मूवमेंट, तो विच इज बेसिकली अ प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर, so a prolonged people's war which has a common agenda which is basically having the red flag at the red fort. So basically red flag indicates communism and red fort is basically signifies the authority. As you might be aware that on Independence Day we unfurled the flag at red fort. The prime minister basically hoists the flag at red fort. So red fort is basically the representation of Indian democracy, Indian authority, state authority. So basically the agenda is hoisting the red flag at the red fort. So basically it wants to bring down the current democratic setup in India and basically bring a governance overhaul, thus furthering the ideology of basically a people's government or a communist government, as to say. So basically that is the meaning of this term. So it is multifaceted because it tries to bring change in terms of the governance structure in the form of basically shifting from a liberal democracy that we have to a communist or a socialist democracy. Similarly, it has some economic connotation as well, which basically tries to reduce the industry or the urban rural divide and basically the divide between the capitalist class and the worker class. So it's not just a it's not just a governance movement. It is basically a class movement as well as an economic movement having overlapping implications on the governance as well as social front. So ये एक overall understanding है कि ये left wing extremism किस चीज से connote करता है, and it is prevalent in more than 15 states of our country in different capacities. तो Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, your Odisha, West Bengal, etc. all these states are affected by left-wing extremism to some or the other level, whereas its core areas are basically your Chhattisgarh, Jharkhand, these areas where your tribal population is in a significant portion and basically the development has not reached a sufficient level in these places. These places are basically the hotspots for the left-wing extremism. And there is a popular saying regarding the left-wing extremism, its agenda. It basically tries to have the whole country under its influence.
starting from Nepal border to it's also said that from Pashupati to Tirupati. So from Nepal border to basically your Tirupati in Andhra. So it tries to have the whole control over this region. So this is an overall understanding on what left-wing extremism is, and it is in another form known as Naxal movement, because it started from the Naxalbari village, and it was through this movement that it has protracted into a overall long-term movement per se. So let's try and look at some examples where left-wing extremism was present on ground. So as I told you that it started from the Naxalbari village. However, in 1970s, it propagated under the leadership of Kanu Sanyal. However, in 1980s, K. Sitharamaiah basically founded the People's War Group, which took the leadership, and basically now it is directed by numerous organizations which have come under the leadership of CPI-ML, that is Communist Party of India, Maoist Leninist. So this is basically leading the protest as of now. So it is banned. It is a banned organization by the government of India, and it is considered as a terrorist organization per se. It is mostly prevalent in, as I told you, in the Chhattisgarh and Jharkhand region, Dantewada and Bastar districts. These are two major districts in Chhattisgarh which are under the control of the Naxalites, and has been the location where a lot of security personnel have lost their lives while fighting against these Naxalites. So these Naxalites have led to a lot of issues on ground. For example, they have looted a lot of affluent people in these regions. They have engaged in I would say armed conflict with the security personnel, leading to the loss of lives of various security personnel. Similarly, they have led to destruction of government property, be it your mobile towers, railway lines, etc. They have even caused damage to your school infrastructure, health infrastructure, leading to disruption of day-to-day operations in these districts, and leading to basically the governance failure in this region. They are also famous for basically extortion of money in these areas, and trying to siphon off the money from the government plans like Manrega, PDS, etc. They try to siphon off the money from these schemes and use it to purchase arms and further their interest in the agenda. So this is how they are operating on ground. This is some examples how they are leading to some issues on the ground, and what is their modus operandi per se. So now let's try and look at what are the various issues or threats posed by left-wing extremism in India. So basically as जैसे हमने समझा था कि जो अल्टीमेट इनका एजेंडा है वो बेसिकली हमारा जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसे ओवरहॉल करना है. सो दे आर नॉट टारगेटिंग सम स्मॉल एजेंडा दैट दे गेट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड और दे वांट टू हैव ऑटोनॉमी इन दैट रीजन. दे वांट टू चेंज द ओवरऑल. दे बेसिकली डू नॉट एक्सेप्ट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. दे सी दैट इट इज कम्प्लीटली फ्लॉड, एंड इसकी वजह से उनके इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं. दस उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ओवरहॉल करना एंड एक न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाना. सो एज अ थ्रेट, इट इज अ थ्रेट टू आर करंट डेमोक्रेटिक सेटअप, our democratic nation as of what we know as of now. and ये basically हमारे institutions, हमारे जो bodies हैं उन सब को challenge कर रहा है, be it in terms of violent protest or be it raising money through various money laundering channels. It is also creating few I would say urban settlements now. पहले ये मूवमेंट ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड थी टू ट्राइबल एरियाज वेयर बेसिकली योर डेवलपमेंट हैज़ नॉट रीच्ड प्रॉपरली, परंतु अब ये यू कैन फाइंड पीपल हु आर सिंपथाइजर, जो इस चीज़ से सिंपथाइज करते हैं उनकी आइडियोलॉजी से, एंड दे आर गेटिंग ideological funding as well as moral support from urban individuals who basically affiliate to the Maoist and communist ideology. These people are known as urban Naxals, which you might have heard in the recent news affairs as well.
सो बेसिकली दीज आर द थ्रेट्स. वो भले हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट हो सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी को थ्रेट हो सकते हैं, एंड दीज आर बेसिकली ट्राइंग टू वू द पीपल इन ऑर्डर टू ज्वाइन देयर कैडर्स. So basically youth is being I would say that brainwashed as well as through social media and other platforms, जहाँ पे उनको entice किया जा रहा है कि this is a better future for them and they should actively get engaged in it. So these are creating issues for the productive utilization of our democratic dividend as well, demographic dividend as well. So these are the issues being created, or the threats how your this left-wing extremism can create issues on the ground. Now let's try and look at few issues. किसकी वजह से, क्यों ये लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म किसी एरियाज में प्रोपगेट कर रहा है या क्यों सरफेस हुआ है, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो जैसे हमने अभी तक देखा है कि ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज हैं which are originating due to the interplay of multiple factors. It's not possible कि कोई एक single grievance इन सारे issues को propagate कर रहा है. There are multiple reasons जिनकी वजह से ये issues ground पे arise होते हैं. So there are some economic reasons, political reasons, socio-cultural reasons जिनकी वजह से left wing extremism इन areas में surface हुआ है as well as sustain किया है इतने टाइम तक. So एक saying है basically कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की मेजर रीजन है जल, जमीन और जंगल. सो बेसिकली दिस इन सम सेंस सम्स अप कि मेजर इश्यूज क्या हैं इन ट्राइबल एरियाज में. वन इज योर जल, दैट इज योर वाटर रिसोर्सेज, द एक्सेस टू प्रॉपर वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा इज नॉट present in these areas because the infrastructure is not that developed. Then second is your जमीन in the sense कि इन ट्राइबल एरियाज में, ये ट्राइबल एरियाज जो हैं वो जनरली मिनरल रिच एरियाज भी हैं. सो जो मिनरल एक्सप्लॉयटेशन कहें या उसे कहेंगे मिनरल यूटिलाइजेशन के लिए जनरली गवर्नमेंट को वो ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है. हाउएवर दीज पीपल हैव नॉट बीन प्रॉपरली कंपनसेटेड और प्रॉपरली रिहैबिलिटेड, जिसकी वजह से उनके जो ओरिजिनल ऑपरेटर्स थे, ओरिजिनल कॉमन आई वुड से ओनरशिप ऑफ लैंड था, वो जो कल्चरल सिस्टम्स थे वो डीरेल हो गए हैं एंड उनको प्रॉपर अकोमोडेशन, प्रॉपर लाइवलीहुड मीन्स नहीं प्रोवाइड हुए हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रीवेंसेस हैं और वो एलिएनेटेड फील करते हैं इस गवर्नेंस प्रोसेस से, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस से, क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है. जबकि वो देखते हैं कि एक बड़ी इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ कि मेजर कैपिटल सिटीज में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और क्या उनको अवेलेबल हैं. सो बेसिकली सेकेंड मेजर इशू इज जमीन. एंड तीसरा मेजर इशू है जंगल. जंगल बेसिकली मीन्स दैट दे वर लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज. तो अब जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हुई हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप हुए हैं, जिनकी वजह से बेसिकली उनका फॉरेस्ट में रहना पॉसिबल नहीं रहा है. उन्हें वहाँ से अपने एरिया से एलिनेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका जो रिलेशन था फॉरेस्ट के साथ वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है. बिकॉज वो काफ़ी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, भले ही अपने लाइवलीहुड के लिए, भले ही अपने बेसिक डे टू डे नीड्स के लिए या शेल्टर के लिए. ऑल दीज रिलेशन विद द फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड. तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये आप अपने कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं या फिर कहीं और कोट कर सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या नक्सलाई मूवमेंट है वो किस चीज़ की वजह से इमर्ज हो रही है. अब हम कोशिश करते हैं कि एक एक फैक्टर को आराम से समझें कि क्या क्या चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं. सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रीजंस. इकोनॉमिक रीजंस हैं बेसिकली वन इज पॉवर्टी, दैट इन एरियाज में क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई है, प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप नहीं है. सिमिलरली जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड रीजन्स हैं जनरली, सो एग्रीकल्चर भी उतना प्रिवेलेंट नहीं है, जिसकी वजह से पॉवर्टी इज अ डोमिनेंट फिनोमेना इन दिस रीजन. Poverty and unemployment together leads to economic deprivation of these people, which leads to alienation. अब वो stark differences देख सकते हैं. For example, हमारे पास जो facilities हैं in terms of livelihood, हम monthly जो हमारी income है in comparison to these people who are living in tribal areas is very huge. There is a huge difference. जो हम facilities afford कर सकते हैं वो नहीं afford कर सकते. तो this inequality leads to a relative deprivation, which is, as I told you in the very first lecture, that it leads to a situation of relative deprivation, which is the central force, जिसको
एक्सटर्नल एक्टर्स फैन करके एक मूवमेंट को क्रिएट करते हैं. सो ये इनइक्वालिटीज जब लोगों को बार बार दिखाई जाएंगी, बार बार जताई जाएंगी बाय सम एक्सटर्नल एक्टर्स, दे वुड बी एजिटेटेड दैट यस वी ऑल्सो वॉन्ट अ पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द रिसिपियंट्स ऑफ दिस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट होता है, जिसकी वजह से दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स स्टार्ट. सो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस. अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं इस मूवमेंट के, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सरफेस करने के. तो उनमें से वन ऑफ द मेजर रीजन इज योर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अगर हम लोकसभा राज्यसभा में देखेंगे मेंबरशिप ऑफ ट्राइबल पीपल, इट्स क्वाइट लेस इन स्पाइट ऑफ योर रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST कम्युनिटी. स्टिल जो इन रीजन से लोग आ रहे हैं उनकी काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है, उनकी वॉइसेस को इतना महत्व नहीं दिया जाता है. सो सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन दीज एरियाज, बी इट योर SDMs, बी इट योर रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जो भी हैं इस एरिया में, दे हैव अ एलिटिस्ट माइंडसेट, क्योंकि वो जनरली किसी और एरिया से आके वहाँ पे पोस्ट होते हैं. सो दे आर नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट उस एरियाज की रिक्वायरमेंट क्या है, उस एरिया की फीलिंग्स क्या हैं उन लोगों की, वहाँ का लोकल कल्चर क्या है, विच इज़ लीडिंग टू बेसिकली अ स्टेट ऑफ एलियनेशन, जहाँ पे लोग एसोसिएट नहीं करते हैं अपने आप को, अपने कंसर्न्स को प्रॉपरली रेज नहीं कर पाते हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर होगा तो लोग इस प्रोसेस से एलियनेट हो जाएंगे, अपने आप को एक्सक्लूडेड महसूस करेंगे. सिमिलरली जो इम्प्लीमेंटेशन है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस लॉज, फॉर एग्जांपल योर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट गारंटी करता है ट्राइबल लोगों को यूसेज राइट्स, योर बेसिकली टाइटल राइट्स टू दैट लैंड. हाउएवर जब उसके जो बेनिफिशियरीज को डिसाइड करने का प्रोसेस है वो आइडियली ग्राम सभा के द्वारा होना चाहिए, जिसके अंदर ये सारे ट्राइबल लोग भी इंक्लूडेड होने चाहिए. बट बहुत जगह ये देखा जाता है कि क्लेम्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, एज वेल एज जो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है वो भी इतना रोबस्ट नहीं है, तो बहुत सारे लोग उस फायदे से वंचित रह जाते हैं. सो विच इज क्रिएटिंग इश्यूज. तो जो उनको प्रॉमिस किया गया है, जो बेनिफिट्स उनको आइडियली मिलने चाहिए इस सेटअप के अंडर, वो नहीं मिल रहे हैं, विच क्रिएट्स अगेन द इशू ऑफ एलियनेशन. सो दीज आर द पॉलिटिकल रीजंस जिनकी वजह से ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सरफेस कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है इन दैट रीजन. नाउ लेट्स ट्राई एंड लुक एट द कल्चरल एंड सोशल रीजंस. सो कल्चरल और सोशल रीजंस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एरिया जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनके अंदर अपने डिस्टिंक्टिव कस्टम्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर होते हैं, उनका रिलेशन फॉरेस्ट के साथ एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन में होता है. सो हम उसे इक्वेट नहीं कर सकते. जो हमारे लिए फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है, हमारे जो कस्टम्स हैं, सो हमें उन्हें कॉग्निजेंस देने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है और उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा है. सो ये ना होना ही उसका एक मेजर रीज़न है. इन एरियाज में लिटरेसी का लेवल कम है, सो जिसकी वजह से बेसिकली इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय रेवेन्यू ऑफिशियल्स, और या फिर जो थर्ड पार्टी एक्टर्स हैं वो उन्हें ईजिली गुमराह कर पाते हैं फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से और लोगों के जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं. और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स हैं वो बेसिकली उनको अपने कैडर में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, उन्हें बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी से इफेक्ट कर पा रहे हैं, उन्हें एनरोल कर रहे हैं अपने डोमेन में. सो दीज आर द कल्चरल एंड सोशल रीजंस. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स होने के साथ साथ, क्योंकि आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी इज नॉट इट डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया, एंड यहाँ तक कि अभी भी जो इसका मेजर सपोर्ट बेस है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फंडिंग. एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं, बी इट फ्रॉम योर चाइना, बी इट फ्रॉम पाकिस्तान, बी एंड दीज आर राउटिंग दीज सपोर्ट, भले ही वो फंडिंग के फॉर्म में हो, भले ही वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट में हो, वो बेसिकली चैनलाइज क्यों करी जा रही है हमारे जो ट्रांसपेरेंट बॉर्डर्स हैं, द पोरेस्ट बॉर्डर्स हैं, भले ही बांग्लादेश के साथ हो, भले ही नेपाल के थ्रू हो. सो इनके और इवन सोशल मीडिया के थ्रू अब बेसिकली एक्सटर्नल एक्टर्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, विच आर गिविंग देम आइडियोलॉजिकल फंडिंग सपोर्ट. एंड जैसा मैंने अब बताया कि अब ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्पर्स्ड हो गया है, थोड़ा मैकेनिज्म चेंज हो गया है. नाउ ये सिर्फ जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है,
अब इन्हें सपोर्ट बेसिकली अर्बन एरियाज में से भी मिल रहा है थ्रू सम सिंपथाइजर्स, जो इनके लिए विच माइट बी पोस्टेड एट बेटर ऑफ पोजिशंस ऑल्सो, एंड विच माइट बी इनटू मीडिया और सम अदर प्लेसेस, जहाँ पे वो उनको लिए फेवरेबल एक्सेप्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आइडियोलॉजी के लिए, फंडिंग जनरेट कर रहे हैं, या न्यू रिक्रूट्स अरेंज कर रहे हैं. सिमिलर ऑपरेशंस आर being operated in the urban setting also, which is basically making it harder to tackle with this problem also. So ये major issues हैं जिसकी वजह से ये issue prevalent है, and या ये क्यों arise हुए हैं. So basically अब हम समझते हैं कि ये persist क्यों कर रहे हैं. ये reasons definitely sustain कर रहे हैं, इसकी वजह से persist भी कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम्स पूरे इवॉल्व रिमूव नहीं हुए हैं, भले ही गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं, स्टिल दीज इश्यूज आर प्रिवेलेंट. जैसे कि गवर्नेंस लैक, द डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस इन अ रीजन इज बेसिकली क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि कम लैक ऑफ गवर्नेंस होने की वजह से बेसिकली एक एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही है. डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से दीज काइंड ऑफ एक्टर्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर, जो गवर्नेंस को और हैम्पर कर रहे हैं. सो बेसिकली इट क्रिएट्स अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस काइंड ऑफ अ लूप, जहां पे जो उस चीज का रीजन है वो उसका इफेक्ट भी बन रहा है. सो ये बेसिकली एक परपेचुअल कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है. देन बेसिकली योर पीपल जो कि वहां पोस्टेड हैं वो सेम एज आई टोल्ड यू, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ट्रूली टेकिंग द नीड्स ऑफ द पीपल इनटू कंसिडरेशन. जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं, जो एक्ट्स लेजिस्लेशन हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड लेटर एंड स्पिरिट ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज परसिस्ट कर रहे हैं. सो ये हमने एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि नक्सलिज्म क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, क्या एग्जांपल्स हैं उस चीज के, और किन रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम सरफेस हुई थी, एज वेल एज अभी भी सस्टेन कर रही है इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स. सो नाउ लेट्स ट्राई एंड लुक एट क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए. सो सजेशंस, जैसा हम अभी तक समझे हैं कि जो रीजंस हैं उन्हें टैकल करने की जरूरत है एक एक लेवल पे. सो इसीलिए सजेशंस भी मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए. आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कुछ सजेशंस होंगे, पॉलिटिकल सजेशंस भी होंगे, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड अपरेटस को भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक्सट्रीमिज्म फॉर्म है. So basically the bodies are resorting to some kind of violence, some kind of extra constitutional methods. तो हमें भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाने की जरूरत है, मैन पावर इंटरवेंशंस लाने की जरूरत है, नए मेथोडोलॉजीज लाने की जरूरत है, जिससे कि वो टैकल कर पाएंगे इस प्रॉब्लम. तो हम इसे एक एंटायरिटी में समझते हैं. So first of all, let's try and look at what are the economic suggestions that needs to be put in place. So one is basically we need to up our game when it comes to education, skilling and infrastructure in these region. So basically हमें नए स्कूल सेटअप करने की जरूरत है. Your internet setup, be it through satellite communication or through optical fiber network, जिस भी तरीके से हो सके हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों को हमें अपस्केल करने की जरूरत है, ताकि जो बेसिक एम्यूनिटीज, द बेसिक फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द नॉर्मल स्टेट्स इन इंडिया, वो अवेलेबल हो ट्राइबल रीजन्स इन दीज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन्स एज वेल, ताकि एक नॉर्मल यूथ के पास अपॉर्चुनिटी हो टू बेसिकली इंटीग्रेट इनटू द इंडियन इकोनॉमी. So that is one major infrastructure investment. So specific funds, dedicated funds needs to be provided to these left-wing extremism affected areas. वो भले ही उसके लिए एक अलग से कॉर्पस जनरेट किया जाए, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्पेशल सेस भी हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन आवर वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सिमिलरली हमें स्किलिंग करने की जरूरत है, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ऑफ द यूथ इन दिस रीजन. उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देने की जरूरत है. वी कैन हैव डेडिकेटेड सेंटर्स, स्किलिंग सेंटर्स सेट अप इन दीज एरियाज, जो कि बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे ऑफ द यूथ इन दिस रीजन, so that they can effectively become a positive contributor to the Indian economic cycle. So ये steps लेने की जरूरत है इकोनॉमिक फ्रंट पे.
नाउ कम्स टू द पॉलिटिकल फ्रंट. पॉलिटिकल फ्रंट में जैसे कि हमने देखा इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है. सो वी नीड टू मे बी इंक्रीज द रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज एज वेल एज आवर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. देन वी नीड टू गिव dedicated importance to these region, active policies for the development of these region, proper implementation of your 5th schedule. हमने प्रोविजंस बहुत सारे बनाए हुए हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से हो जाए तो ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं. सो वी नीड टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द 5th schedule, give more powers to the authorities so as to they can take the actions on the ground, improve the funds as well as functionaries with the Gram Sabha so that they can be actively engaged in the governance process. ऐसा ना हो कि ये टॉप डाउन अप्रोच हो, ये बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए for the development, for the priorities to be set up in these region. Similarly, the Forest Rights Act implementation. हमें ग्राम सभा का रोल प्रॉपरली चैनलाइज करना पड़ेगा, प्रॉपरली इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी to give the claims to the people who deserve it rather than to restrict the people who are getting the claims. So हमें dedicated efforts डालने पड़ेंगे कि लोगों के forest rights, your title rights, their usage rights are implemented on ground. Similarly हमें amendment लाने की भी ज़रूरत है इस Forest Rights Act में so that there are provisions for basically the livelihood of the people. हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी नए प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है सो दैट लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकते इन लोगों के लिए, या जो लोग रिहेबिलिटेट किए जा रहे हैं उसके अंदर उनकी लाइवलीहुड और उनके गेन शेयरिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म हो. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग वहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं फॉर द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कंट्री आर एक्चुअली मूविंग इनटू द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो अपना बेसिकली प्राइवेट वेल्थ भी country के लिए they are giving it up. So basically they should be actively engaged in the development process. So these are the changes that are required on the political front. Now हम समझते हैं कि security front पे क्या changes लाने की जरूरत है. जैसा हम समझते हैं कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन एरियाज में कैसे ऑपरेट करता है. ये जनरली ऑपरेट इस बेसिस पे करता है कि ये एरियाज आर हाईली फॉरेस्टेड. देयर आर फ्यू रीजन्स जो कि मल्टीपल स्टेट्स के जंक्चर पे लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट स्टेट फोर्सेस के बीच में, जिसको ये एक्सप्लॉइट करके दे आर एबल टू मशरूम इन दीज एरियाज. सो सिक्योरिटी अपरेटस में हमें काफ़ी कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल हमें न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जिससे वी कैन मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल्स. सो वन कुड बी वी कैन हैव योर ड्रोन काइंड ऑफ अपरेटस, UAVs, from which we can either target the hideouts of these Naxalite groups, or we can have the surveillance of a region. We can have night vision cameras, robots. We can use IR imaging or infrared imaging. So these kind of techniques, these kind of new technologies could be sufficiently used in order to basically have a dedicated surveillance network as well as proper fighting with these Naxalite groups without the loss of manpower. Now comes to the changes that are needed in the manpower front. Manpower front में basically हमें coordination लाने की ज़रूरत है between different जो हमारे security forces हैं of different states या police forces of different states. We need to have a dedicated coordination center which might be under the leadership of different chief ministers involved in that region. सो हमें एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है जिससे हम बेसिकली इन नक्सलाइट ग्रुप्स को वी कैन टैकल देम कोहेसिवली. प्रॉपर ट्रेनिंग इज अनदर कॉम्पोनेंट बिकॉज जो नॉर्मल पर्सनल्स हमारे ट्रेंड है दे आर ट्रेन इन डीलिंग विद नॉर्मल सिचुएशन, दे आर नॉट ट्रेन इन डीलिंग विद गुरिल्ला वॉरफेयर काइंड ऑफ टेक्टिक्स जो कि ये नक्सलाइट ग्रुप्स डिप्लॉय करते हैं. सो हमें ट्रेनिंग, उन्हें स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ द टेपोग्राफी ऑफ डीलिंग विद ट्राइबल पीपल बिकॉज ये सेंसिटिव रीजन्स है. सो हमें उनको सेंसिटिव ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है. उन्हें टोपोग्राफी, जोग्राफी एज वेल एज डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ लाइक गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, इन सबको की स्पेसिफिक डेडिकेटेड ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है हमारे पर्सनल को सो दैट दे आर वेल इक्विप्ड in order to deal with this, as well as training in terms of using these technological interventions. तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है. सो ये हमारे सिक्योरिटी फ्रंट पे रिक्वायरमेंट है.
सिक्योरिटी फ्रंट पे जो हमारी ओवरऑल आइडियोलॉजी है इन डीलिंग विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट्स इज नोन एज समाधान, विच इज हैविंग योर security dimensions as well as having a proper dashboard of various key parameters which indicate कि हाँ कैसा हमारा approach चल रहा है, actionable intelligence. So these all parameters are taken care in our overall strategy of समाधान. So now let's try and look at what are the societal steps that can be taken in order to tackle with the situation of left wing extremism. So at the societal level, we need to have two major things. One is basically a strong voice to absorb any kind of violence. So we should not sympathize with any institution or any body which is resorting to extra constitutional means to raise its demand. हमारे constitution mechanism में इतना space है कि we can very easily accommodate different voices, contradicting voices as well. So कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी अगर वायलेंट मीन्स का प्रयोग कर रही है विदाउट इवन एग्जॉस्टिंग द डेमोक्रेटिक, सोशल एज वेल एज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, देन वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट इट. देन comes the active role of anti-propaganda. We need to counter their propaganda which they are using to spread their ideology. हमें उसके अगेंस्ट एक काउंटर आइडियोलॉजी बनाने की जरूरत है so that we can counter their propaganda. So वो ये स्टेप्स हम सोसाइटल फ्रंट पर ले सकते हैं. Apart from these steps, we need to understand that there are dedicated schemes which are being run by the government of India. So उन्हें हमें अपस्केल करने की ज़रूरत है, उन्हें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड. So some of these schemes are basically the central governments help the state governments with central armed police force. So basically they are on the request of the states, few battalions, few personnel from the central armed police force are basically deployed in these regions to augment the efforts of the state authorities, because law and order basically falls under the domain of the state list. Similarly, India Reserve Battalion is another force which is deployed in these regions, as well as there are dedicated efforts by the central government to modernize, to upgrade the facilities as well as capabilities of the state police and intelligence apparatus on the ground. Yet another scheme is a security related expenditure scheme, which basically reimburses the amount of money that is spent by various states in order to fight with these kind of public order issues. There are dedicated helicopters as well as other security apparatus that is being supplied by the Ministry of Defence to various state police agencies, as well as the center helps in the interstate coordination when it comes to different states which are being affected by the left-wing extremism. So all these mechanisms are currently in place. So we need to basically take it to the next level. We need to continue these steps. And जैसा हम समझ रहे हैं ये issue 1967 से चल रहा है, so basically it grew from a single village and now it is spread to over 17 states. So it has, from 1967 it has stayed for more than 50 years. So we need to understand that it cannot be solved only through a security apparatus or a one point solution for the whole problem. We need to have dedicated efforts. हमें इन सारे एफर्ट्स को काफ़ी टाइम तक सस्टेन करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को रियलाइज़ हो कि यस, जो हमारा स्टेट है, जो हमारी मशीनरी है, दे आर वर्किंग इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट. और इवन इन जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं, इनको भी हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू टैकल देम, सो दैट उनको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया जा सके, उनके फंडिंग सोर्सेज के, उनके आर्म सोर्सेज को. सो वी नीड टू कंटिन्यू विद दीज एफर्ट्स फॉर एट लीस्ट 5-10 years to actually have a complete elimination of this problem. Definitely over the past few years the spread of Naxalism has reduced considerably, and जो ministry की data है, so the number of districts which are actively affected by left-wing extremism have definitely come down, as well as जो security personnel का loss हमें जो हो रहा है per year, that has also come down over the past few years. However, we cannot be complicit with this achievement. We have to continue with these efforts, क्योंकि ये बहुत easily possible है कि जैसे ही हम इस पर से impetus कम करेंगे, these things might surface again.
तो हमें इसके रूट कॉज को एलिमिनेट करना है थ्रू दीज डिफरेंट इंटरवेंशंस, तभी हम इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने समझा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, उनका एजेंडा क्या है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं ऑन ग्राउंड, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है, क्या आइडियोलॉजी है, सिमिलरली उन क्या ग्राउंड पे इश्यूज हैं जो कि इन ऐसे मूवमेंट्स को प्रोपगेट करते हैं, एंड वाई इट इज़ इवन नाउ प्रिवेलेंट, और हम क्या सजेशंस दे सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है रिगार्डिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।